Hi Leo, my name is Yashika. I am a professional tarot card reader and a spiritual counselor, and welcome to my channel. Today we are going to look at what do the next 3 months hold for you, any blessings, challenges, and अगर यूनिवर्स से आपके लिए कोई एडवाइस है तो वो भी देखेंगे हम. तो विदाउट फर्दर डू लेट अस बिगिन एंड सी कि अभी इस टाइम पे आप लोगों के साथ क्या चल रहा है. Leo, the very first card I have is the Ten of Cups. I feel that in your family life, you are someone who is currently trying to figure out what they want to do in their life. Because I feel that you have many things in your life, but there is just one cup missing. I don't know why. With the Ten of Cups, I am also getting the image of Eight of Cups कि सब कुछ है but still something is missing. Because and ये चीज़ स्पेशली हो सकती है आपके करियर के लिए, बिकॉज़ यहाँ पे एम्परर भी है. हो सकता है कि अभी इस टाइम पे आपको डिफ़िकल्टी हो रही हो in feeling your best. Maybe you are not feeling your best when it comes to your career. And with the Two of Wands in the reverse, yes, you have been introspecting, you have been thinking a lot about this, but I think कि एक पॉइंट के बाद सोचना बंद करना पड़ता है. You have been thinking a lot about your career, you have been thinking a lot about the family that will come from you in the future. So your partner and your children, and how you can provide for them. Doesn't matter whether you are a male or a female, but I think that yes, you are thinking a lot about your future these days. And with the Two of Swords in the reverse, I also think that your mental health is not supporting you right now. This reading is going to resonate most with Leo moons. Now coming to one more thing here, I just want to clarify the Two of Swords. Okay, I have the Two of Wands as a clarifier for the Two of Swords in the reverse. So maybe you are trying to avoid taking a decision. You are trying to procrastinate when it comes to making a decision कि एंड हो सकता है ये डिसीजन आपके करियर को लेके हो, एंड आपको भी पता है कि एक डिसीजन आपको लेना है बट आप उसको पोस्टपोन कर रहे हो, आप उसे नहीं लेना चाहते हो. यू नो कि आपको या तो किसी इंसान को कट ऑफ करना है, या फिर आपको अपना जॉब चेंज करनी है, करियर पाथ चेंज करना है, किसी फैमिली मेम्बर को कट ऑफ करना है. यू नो कि आपके फादर के साथ अगर प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो आपको उन चीज़ों को एड्रेस करना है, बट यू आर नॉट डूइंग दैट. बट आई थिंक इट इज़ हाई टाइम. इस पॉइंट पे आपको उन चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है. इस टाइम पे आपको उन चीज़ों को करने की ज़रूरत है. पर लेट अस सी कि अगले आने वाले 3 महीनों में आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स, चैलेंजेस हैं और क्या एडवाइस है यूनिवर्स की तरफ से. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, विद द 3 ऑफ कप्स एंड द 3 ऑफ, not the 3 but the Empress, these two are very very positive cards. So with the 3 of Cups, I think that you will celebrate something, and especially with the Empress, हो सकता है कि आपकी फैमिली में या आप खुद प्रेगनेंसी मतलब कंसीव करो, या फिर आपको कहीं से खबर आए कि yes, someone who is very close to you has conceived a baby. So वो वाली blessing है यहाँ पे. I also feel that you yourself, if you are young and you are not planning on conceiving or starting your own family, I think this is talking about what you want to do in this life, your sole purpose. And this is also talking about your सोलर प्लेक्सस चक्र. तो जो हमारा मणिपुर चक्र होता है, ये उसके बारे में भी बात कर रहा है कि आपको इस दुनिया में करना क्या है, आपको अपना इस दुनिया में इम्प्रिंट कैसे छोड़ना है. तो विद द एम्प्रेस, यस, आपके पास सब कुछ है. अगेन विद द एम्परर एनर्जी सब कुछ है. आपके पास नॉलेज भी है, आपके पास रिसोर्सेज भी हैं, बट विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स इन द रिवर्स काफ़ी अनसर्टेनिटी है कि आगे क्या होगा, बिकॉज यू हैव बिन थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर. तो
यहाँ पे एडवाइस एक ये है कि आप एक तो फ्यूचर के बारे में मत सोचो, जितना ज़्यादा आप फ्यूचर के बारे में सोचोगे आप अपने प्रेजेंट मोमेंट पे ध्यान नहीं दे पाओगे, लियो. And with the three of swords in the reverse, again such a beautiful synchronicity, 3 3 and 3, 3 of cups, the empress with the number 3, and again the 3 of swords. कितनी अच्छी चीज़ है synchronicity, 3 3 3. It talks about the planet Jupiter. तो हो सकता है कि अब आपके गुरु की एनर्जी में आने का टाइम है. हो सकता है कि अब आपको एक ऐसे लेवल पे जाने की ज़रूरत है जहाँ पर सिर्फ आप ज्ञान लेना ही नहीं बट आप ज्ञान देना भी शुरू कर सकते हो. तो एंड विद द नंबर 3 मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे सोलर प्लेक्सस चक्र के बारे में ज़्यादा बात हो रही है. तो हो सकता है कि आपको अगर हेल्थ इश्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं तो अगले आने वाले 3 महीने में चीज़ें स्टेबल हो जाएंगी, हेल्थ इश्यूज़ आपके बेटर होंगे. मैं जानती हूँ पर्सनली कुछ लियो मून्स को एंड लियो राइजिंग्स को जिनके साथ हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं. So yes, now the next thing is with the world here, I think you would try to wrap things up. अगर आपको ऐसा लगता है ना कि कुछ चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ से निकालने की आपको ज़रूरत है या फिर अब उन चीज़ों को ख़त्म करने की ज़रूरत है. दिस could also be talking about people who are doing their bachelor's or master's or PhD. आप उन सब चीज़ों को रैप अप करने की कोशिश करोगे. अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ से निकालने की आपको ज़रूरत है, कुछ लोग भी अगर निकालने की ज़रूरत है, तो अगले आने वाले 3 महीने में वो चीज़ें रैप अप होंगी. Now let me get one more card with the Queen of Cups. Yes, finally Leo, you will be in ट्यून विद योर इमोशंस. आप सिर्फ अपने इमोशंस को ही नहीं समझोगे बट आप एक इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन भी बनोगे अगले आने वाले 3 महीनों में. तो आप अपने आसपास के लोगों को भी अच्छे से समझ पाओगे और अच्छे से जान पाओगे. आई थिंक आप अपने काफ़ी मदरली एनर्जी में स्टेप इन करोगे अगले आने वाले 3 महीनों में विद द एम्प्रेस एंड द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, सॉरी द क्वीन ऑफ कप्स हियर. You will probably, if you are a Hindu, then you will start worshipping a female goddess. You might start worshipping Ma Kali, you might start worshipping Ma Lakshmi or Ma Parvati. For a lot of you, this is also Radha Rani. And ये एक बहुत बड़ी blessing है. मुझे टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे जो चैलेंजेस लग रहे हैं वो एक हेल्थ से रिलेटेड लग रहा है, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड भी हो सकता है कि आप शायद फ्यूचर के बारे में इतना सोच लो कि आप प्रेजेंट मोमेंट को खो दो, बट आपको वो चीज़ नहीं करनी है. आपको अपना प्रेजेंट मोमेंट किसी भी हाल में नहीं खोना है. सेलिब्रेशन की भी बहुत सारे मौके मिलेंगे आपको. यू विल बी इन ट्यून विद योर इमोशंस, क्योंकि हो सकता है कि आपको ना रेस्ट का मौका मिले जो कि आपको बहुत टाइम से नहीं मिला. सो दैट इज़ अनदर ब्लेसिंग. यू विल हैव टाइम टू रेस्ट इन द कमिंग 3 months. क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ चीज़ है जो एंड हो रही है, एक रिवॉर्ड मिलेगा आपको उस चीज़ को एंड करने का. तो वहाँ पे थोड़े से पेशेंस की ज़रूरत है. लेट अस सी व्हाट एल्स इज देयर. द 8 of Pentacles. See, what did I talk about? This transit which has happened, Saturn in Pisces, ये जो भी ट्रांजिट गया है, इस ट्रांजिट की वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो आपकी लाइफ में चल रही हैं ना वो शांत होंगी. एंड वन दैट इज़ अ ह्यूज ब्लेसिंग. बट चैलेंज यहाँ पे ये आएगा कि आपको ना ये वाला ट्रांजिट इंडिपेंडेंट होना सिखाएगा. इंडिपेंडेंट, येस, अ लॉट ऑफ यू माइट ऑलरेडी बी इंडिपेंडेंट, बट द थिंग इज़ कि लियो आपके साथ एक दिक्कत है दैट यू माइट बी इनटू टॉक्सिक पैटर्न्स. तो उन चीज़ों को एंड भी करोगे आप अगले आने वाले 2-2.5 सालों में, 2.5 years में. So yes, this transit is going to help you a lot, Leo. Now let us see if there is any advice from the universe for you. The Lovers, what do you want to commit to? So for people who are looking at my dog,
Please ignore that. So for the people who are in a relationship who want to get married, this is a beautiful time. The next 3 months, you can commit to your partner and you can move ahead in that relationship. You can think about getting married, you can think about starting your own family, because yes, you will. And with the Page of Cups, I see love coming in. If you are single, and even if you are in a committed relationship, I see that in the next 3 months, your love life will take a huge turn. Your love life will definitely change. You will receive a lot of love and care from the people around you, and also from a romantic partner. You will receive some kind of message which will change your love life for the good. And the advice is that don't be afraid to explore your love life. Don't be afraid to explore what your heart wants to do. That is the advice. And अगर आपके मन में आपको ये लगता है ना कि yes, I am ready to commit to something, then commit to it. Because with Leo there can be some problem. मतलब पिछले 2-2.5 साल में तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने शायद अच्छे से किसी चीज़ में कमिट नहीं किया है. नाउ अगेन दिस विल रेजोनेट मोस्ट विद लियो मून्स. तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने पिछले 2-2.5 साल में किसी भी चीज़ या किसी भी इंसान में ना अच्छे से कमिट नहीं किया है. बट अब वो चीज़ बहुत चेंज होगी, बिकॉज सैटर्न इन पाइसेस वो आपको बहुत ज़्यादा सीरियस बनाने वाला है अपनी लाइफ को लेके. So yes, that was it, Leo. Thank you so much, and I hope you resonated. One thing I would love to tell you is that if you want a personal session with me, you can DM me on my Instagram, or you can message me on the WhatsApp number that I've given down in the description. Thank you so much, and I will see you in the next 3 months. Thank you. Bye.